جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارکہ میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارکہ کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو جہاں ہم اتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اور عبادت کرنے کی اس ماہ رمضان المبارکہ میں توفیق عطا فرمائے۔ نماز روزہ تراویح تہجد کے ساتھ ساتھ اور ایک عبادت کا اہتمام کریں۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ اس عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی شریعت میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ اعتکاف واجب، یعنی واجب اعتکاف۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جیسے کسی نے منت مانی، کسی مسلمان نے منت مانی کہ یہ میرا اگر فلاں کام پورا ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن مسجد میں اعتکاف کروں گا، ٹھہروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے، یہ نظر کا اعتکاف ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اس واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزے کے واجب اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اعتکاف کی پہلی قسم واجب ہے، جو مسلمان کسی منت کے پورا ہونے پر کرتا ہے، فلاں کام ہو گیا تو میں 1 یا 2 دن مسجد میں ٹھہروں گا، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزے کی اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، سنت کفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارکہ کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف شروع کب ہوتا ہے؟ 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے قبل، یعنی سورج ڈوبتے وقت یا ڈوبنے سے پہلے معتکف مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ پہنچ جائے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے پہنچ جائے، اور 29 رمضان کو اگر چاند دکھے تو چاند دیکھ کر وہ باہر نکلے، یا 29 کو نہ دکھے تو 30 روزے پورے کرنے کے بعد، وہ چاند دکھائی دینے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یہ سنت اعتکاف، یہ رمضان المبارکہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف سنت موقدہ للکفایہ، جو رمضان المبارکہ کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف اگر ایک نے بھی نہیں کیا، کسی ایک شخص نے بھی نہیں کیا محلے میں یا شہر میں، تو سب پکڑے جائیں گے۔ لیکن محلے میں یا شہر میں ایک مسلمان بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو سب چھوٹ جائیں گے۔ اور اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، اور اعتکاف سنت موقدہ للکفایہ میں بھی روزہ شرط ہے۔ اب اعتکاف کی تیسری قسم کیا ہے؟ مستحب اعتکاف یا نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ یہ اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا مسجد میں آپ جا رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں اور واپس پلٹ آئے، تو اتنی دیر کا بھی اعتکاف یہ مستحب ہوتا ہے، اسے نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنی ہی نیت کریں آپ نفلی اعتکاف کے بعد، یعنی مستحب اعتکاف کی۔ مسجد میں آپ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے، نیت یہ کرے کہ میں خدا کے واسطے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں خدا کے واسطے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مستحب اعتکاف کی۔
ये बहार शरीयत, फतावा आलमगीरी और कानून शरीयत में भी यही लिखा हुआ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिन में अब एतिकाफ किसे कहते हैं उसकी तारीफ सुन ली। एतिकाफ की तीनों किस्में ये भी आपने सुन ली। एतिकाफ है वाजिब, एतिकाफ है सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया, एतिकाफ है मुस्तहब या नफली एतिकाफ। तीनों किस्में भी आपने सुन ली। अब आइए इन तीनों एतिकाफ के फजाइल क्या हैं वो सुनते हैं। एतिकाफ वाजिब का तो आपने सुन लिया। अब रमज़ानुल मुबारक में जो एतिकाफ किया जाता है उसकी फजीलत क्या है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों का एतिकाफ कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। ये बहक़ी शरीफ की रिवायत है, बहक़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ करता है। एक और हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस 10 दिनों का एतिकाफ करने वाले के नामे आमाल में 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और उसको क़ियामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। देखा आपने कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला 1000 साल की इबादत का सवाब और अपने अर्श के साये में उसे जगह अता फरमाएगा। ये इस एतिकाफ का सवाब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब सबसे बड़ा एतिकाफ करने वालों का फ़ायदा क्या है? रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जो एतिकाफ होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा इस एतिकाफ का ये है कि आदमी गुनाहों से बाज रहता है, गुनाहों से दूर हो जाता है, सारी दुनिया से कट कर वो मुकम्मल इबादत में रहने लगता है। गुनाह करने का कोई मौका उसे नहीं मिलता। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस एतिकाफ का, रमज़ानुल मुबारक के एतिकाफ का, कि उसे शब क़दर मिल ही जाती है। शब क़दर मिल ही जाती है क्योंकि आखिरी अशरे में एतिकाफ होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया शब क़दर को आखिरी अशरे के रमज़ानुल मुबारक की 5 ताख़ रातों में तलाश किया करो। 5 ताख़ रातें कौन सी? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं 5 रातों में शब क़दर को तलाश करो। इन 5 रातों में कोई ना कोई एक रात शब क़दर हुआ करती है और जो बंदा एतिकाफ करता है तो उसे ये शब क़दर मिल ही जाती है इन रातों में जाकर इबादत अगर करे तो। क्योंकि शब क़दर की फजीलत क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा शब क़दर में इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। ये शब क़दर की फजीलत है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए नीयत ये करे, नीयत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला अच्छी नीयत के साथ में हमें वो मौका भी अता फरमाएगा। अगर मौका ना भी मिला, जिंदगी ने वफा ना भी की, तो नीयत के सबब अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, ए अल्लाह जिंदगी बाकी रही तो कम जिंदगी में कम से कम एक मरतबे हमें रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ अदा करने का मौका दे। एतिकाफ करना चाहता हूँ ये नीयत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला मौका अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 2 एतिकाफ हो गए। नफली एतिकाफ का सवाब क्या है? उलमा इरशाद फरमाते हैं आप जब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी आप गए, कोई नमाज नहीं पढ़े, रोज़ा नहीं रखे, आप ज़कात नहीं दी, आप यानी कोई तिलावत कुरान नहीं करे, जिक्र अस्कार नहीं किया, मस्जिद में जाने के बाद ना तिलावत कुरान है, ना जिक्र अस्कार है, ना नमाज है, बल्कि एतिकाफ की नीयत करके मस्जिद में बैठे, जितनी देर मस्जिद में बैठेंगे उलमा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर मस्जिद में बैठने वालों की हर सांस पर उसे एक नेकी अता फरमाता है। एतिकाफ मुस्तहब की नफली एतिकाफ का ये सवाब है, जितनी सांसें लेंगे अल्लाह हर सांस पर एक नेकी अता फरमाएगा। और उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान मगरिब की नमाज से पेशतर नफली एतिकाफ की नीयत करे और मस्जिद में दाखिल हो, मगरिब की नमाज जमात से पढ़े, इशा की नमाज तक मस्जिद में रहे और जमात से इशा की नमाज पढ़कर निकले, इस 1 घंटे का भी अगर कोई एतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाए। मगरिब से इशा की नमाज तक का वक्त अगर एतिकाफ में गुजारते हैं, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। शर्त यह है कि मगरिब और इशा दोनों जमात से हों। और एक आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। उलमा इरशाद फरमाते हैं
एतिकाफ वाजिब के बारे में सुन लिया, एतिकाफ सुन्नत मौक़िद अलल कफ़ाया का सवाब आपने सुन लिया, नफली एतिकाफ की एक फजीलत आपने सुन ली। अब उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई एक दिन का भी नफली एतिकाफ करता है जिसमें रोज़ा शर्त नहीं है तो उसका सवाब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा इरशाद फरमाते हैं एक दिन का भी अगर कोई नफली एतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस एतिकाफ करने वाले के और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फासला पैदा कर देता है। 3 खंदकों का फासला एतिकाफ करने वाले के और जहन्नुम के बीच में अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देता है। और उलमा इरशाद फरमाते हैं हर खंदक का फासला कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं हर खंदक का फासला दुनिया की मशरिक से लेकर मगरिब तक जितना फासला है उससे ज़्यादा एक खंदक का फासला होगा। तो ऐसे 3 खंदकों का फासला अल्लाह तबारक व तआला एक दिन का एतिकाफ भी अगर कोई करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान उतना फासला पैदा कर देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक खंदक का इतना फासला है तो 3 खंदकों का फासला अल्लाह पैदा फरमा देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और नियत भी करे इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो कम से कम एक माह रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ यानी आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों के सदक़े तौफ़ीक़ में हमें ये मुखाता फरमाएगा। आप तमामी हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है, बिलखुसूस मैं उन तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी वीडियो को पहली मरतबे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप बराह करम मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और मेरे वीडियो से अगर आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है और इसे शेयर करना आज के वक्त की आप ज़रूरत समझते हैं तो मेरे वीडियो को सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी में हम तमाम को बिल्कुल आप तमाम सामीन नाज़रीन को कम से कम एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे का एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आप तमाम सामीन नाज़रीन को ज़मीन आसमान की हर बला से, हर छोटे बड़े मर्ज़ से महफूज फरमाए, हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए और जितने मुसलमान बीमार हाल हैं उन्हें शिफाई कामिला आजिला अता फरमाए और सारे आलम इस्लाम की मुसलमान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम की बारिश फरमाए और गज़ा के जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, मर्द ख़वातीन बच्चे बूढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए और हमारा और आपका खातिमा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।